You had written on farmers' protests, which is going on at Yes, Delhi border. Now, my yes. first thing to ask you will be, how is it going now in India as we speak? At present, the matter has gone in the Supreme Court, and the court has intervened and it is asking the farmers to put their views in front of the government, because until and unless we go through a dialogue, no problem can be solved out in a democracy, because the farmers were till yet they, and even today I think they are on their stand that the government should take the laws back, and the Supreme Court has intervened and asked the farmers to continue their protest without disturbing the public, and they should come forward to have a dialogue and say whatever they want to improve in these laws. So this is the scenario today. The our prime minister is also having a conversation with the farmers in a virtual meeting in Madhya Pradesh of our country. So the whole cabinet is also coming forward to enlighten the farmers about these laws. This is the scenario of India today. How has this all started when the Parliament of India passed those three laws back in, I think, June? Um, and this is the end of December. The only two Mm. states from where the farmers started protesting is Punjab, and basically started in Punjab, then moved on to Delhi border, and some other farmers from Haryana also joined. Why Mhm. other parts of India remained quiet? Why those farmers were not upset, or they did not feel that they are going to be hurting? Actually, if we, uh, you have yourself answered the whole situation. Actually, the farmers from all over the country, we have seen they are very silent and they don't have any problem or any issue with these laws. The only protest is confined to only 2 or 3 states of our country, mainly the Punjab and Haryana. And these states, they, I think, first of all, these states have the main issues because they grow the crops related to MSP. Right. Secondly, the main issue is that ki these state, mainly in Punjab, it is the party ruling the Punjab is not the party ruling at the center. So the whole issue is somewhat politically vendetta. It is a political agenda of the opposition of India, and the But do I farmers have been understand? misguided. Sorry to interrupt you. Do I understand correctly that Captain Amrinder Singh had actually passed laws in Punjab to counter the central laws already? He had done that. So why this drama is still continuing? The drama, actually, first of all, these laws which have been passed by the center, all the states have to apply these laws. They are, if even it was in the media that he had passed out a resolution not to accept these laws, but it is not as per the constitution. They finally they will have to follow these laws which the center have implemented. So actually, it is only the problem that they want to oppose the government for the sake of opposition. The main interest of the farmer is not in their agenda. They have their own political agendas. The So it's farmers actually they basically don't. it's basically playing politics rather than looking after the farmers. Yeah, because the first of all, the farmers, I don't think the farmers they actually know all the laws, what the laws are, and where it hurts them. If it hurts them, they should know where it hurts them. They can talk, but the farmers are not aware of these laws very rightly, and therefore the government is organizing Kisan rallies all over the country, and they are in a direct dialogue with the farmers of India, and they have even released a booklet yesterday regarding the laws, the benefits to the farmers, and they are trying to create general awareness and enlighten them of these laws. If the farmers had known all these things before, maybe the situation would not have such tense now.
So you think the Modi government did not do their homework before passing the laws? No, no. Actually, what is the situation here is कि the country like India, which is a democratic country, we need a very constructive opposition which has some ideas, some vision towards the nation. So the problem here is that we are not having a very constructive opposition. Agar we have an opposition which has some ideology and some vision towards the nation, the future of the nation, then they would not have faced so many problems. The only I think the backlog, or we can say where they went wrong, was that they did not talk to the farmers before. They did not take them into confidence, and it would have been better, like it is my personal view, like before Modi, when Modi ji was the CM of Gujarat, and the Gujarat model, the reforms he did in Gujarat, it was a international talk, not only the national talk. The Gujarat model was a national talk. So if they wanted to make some reforms, they could have done it in a state, any state, like the BJP governing state, and when that state would have given such results, some positive results for the farmers, and it would have become a model state for the farmers, other states would also be forced and attracted towards this model, and it would be acceptably very nicely by all over the nation. अच्छा, Something was that. आपने ये तीनों कानून पढ़े हैं? हाँ जी, हाँ जी। और आपके हिसाब से उनमें कोई प्रॉब्लम्स है? देखिए, जो पहला कानून, अगर 3 रिफॉर्म्स हैं इसमें, जो पहला कानून है उसका, वो है इनका मंडियों का, कि इन्होंने अभी तक केवल जो फार्मर था केवल सरकारी मंडी में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता था। अब उन्होंने बाहर की प्राइवेट मंडियां भी खोल दी हैं कि अगर आप चाहें तो एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आपको इधर जाना है आप इधर जाएं, आपको उधर जाना है। लेकिन जो मंडियां थी उनको खत्म नहीं किया है ना? नहीं, उनको खत्म नहीं किया है, वो मंडी एज इट इज है, मंडी खत्म नहीं हो सकती। और इवन एमएसपी को लेकर गवर्नमेंट जो है वो रिटर्न देने को अब तैयार है कि एमएसपी को हम जारी रखेंगे। केवल एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपको यहाँ जाना है तो आप यहाँ जाएं, आपको वहां जाना है तो आप वहां जाएं। तो अगर एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है तो फिर प्रॉब्लम क्या है फार्मर्स को? फार्मर्स को एक्चुअल में पहले प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जो दूसरी मंडियां जो थी उसमें उन्होंने टैक्स नहीं लगाया था। ये जो सरकारी मंडी है उसमें टैक्स था, प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं था। तो उन लोगों को लग रहा था कि आप उसको फेवर कर रहे हैं प्राइवेट मंडियों को। तो सरकार ने अब ये भी रिफॉर्म, जो 7 संशोधन लिख के दिए थे फार्मर्स को, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम प्राइवेट मंडियों पे भी टैक्स, जो राज्य सरकार रहेगी उसको हम सुविधा दे सकते हैं कि वो टैक्स लगाना चाहे तो लगा सकती है। तो अब वो दोनों मंडियां बराबर हो गई हैं। फार्मर्स को एक्चुअली मुझे लगता है, अगर आप एक्चुअल फार्मर की बात करें तो कोई भी जब चेंज होता है, कोई बदलाव होता है, तो उसको आदमी थोड़ा सा उसके रेजिस्टेंट और हेजिटेंट होता है, क्योंकि उसको लगता है, एक इग्नोरेंस रहती है, पता नहीं कि ये मेरे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा, इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो थोड़ा सा फार्मर्स को ये लगता है, डर सा है। तो उनका डर धीरे धीरे काम करेंगे खत्म होगा अगर जब प्राइवेट में उनको अच्छे वो मिलेंगे। लेकिन उनको इस मामले में मिसगाइड कर दिया गया कि प्राइवेट में आपका नुकसान है, शोषण होगा। तो अनटिल एंड अनलेस आपको मार्केट तो खोलेंगे, और जब उनके खरीदार बढ़ेंगे, अभी तो केवल सरकार को ही बेच सकते थे, ऑप्शन ही नहीं था। अब आपके पास एक कमोडिटी और खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं, तो नेचुरल बात है आप बेनिफिट में रहेंगे। कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम लोग तो थोड़ा दूर बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। मैं जो समझता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था ये बेसिकली एमएसपी को रखने के लिए ही शुरू हुआ था कि हमें रिटर्न गारंटी दो कि एमएसपी को आप खत्म नहीं करेंगे या एपीएमसी एक्ट को आप डिसमेंटल नहीं करेंगे। ये मेरा जो समझना है ये ठीक है कि नहीं? क्योंकि आप तो उधर बैठी हैं, आप देखती हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अभी वो टोटल रिपील क्यों मांग रहे हैं? तीनों एक्ट्स को वापस लो, नहीं तो हम प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। ये जो हाईजैक हो गया है फ्रॉम जस्ट एमएसपी
जो कि आई थिंक लेजिटिमेट उनका डिमांड था, कि उनको डर था कि एमएसपी खत्म हो जाएगा तो उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी वो सुप्रीम कोर्ट का भी ये जो कल डायरेक्शन आया है, वो मैंने पढ़ा है, उसके बाद भी फार्मर यूनियन, सम लीडर्स, यही मैंने देखा टीवी पे कहते हुए कि हमें तो टोटल रिपील चाहिए। ये इतना सारा हाईजैक कैसे हो गया थोड़े ही दिनों में, 20 दिनों में? इसके पहले मैं आपको एक चीज और आपको भी पता ही होगा कि कुछ एक हमारे किसान यूनियन आगे भी आए हैं, जो गवर्नमेंट के पास गए हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है और रिटर्न में उनको कहा है कि ये जो लॉज हैं ये हमारे हित के हैं और इनको आप वापस मत लीजिए। तो कुछ उनमें बीच में थोड़ा सा डिवीजन होना स्टार्ट हो गया है। कुछ एक लॉज वापस लेने पे अड़े हैं, कुछ लोग उसमें रिफॉर्म्स के साथ, उनमें संशोधनों के साथ इन लॉज को आगे लेकर के चलने के लिए भी तैयार हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। और ये चीज तो देखिए क्लियर हो ही गई है ना कि अगर जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को अपने जो उनसे रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे एमएसपी है या मंडी है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनको लग रहा था कि हमारी जमीनें ये हड़प लेंगे, अगर वो बात तो समझ में आती है, लेकिन वो बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में तो ये चीजें अनएक्सेप्टेबल होती ही है ना। इन एक इन सब डेमोक्रेसी में में इन सब में जो एलिगेशंस हम लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं न्यूज में, कि शाहीन बाग वाले प्लेयर्स उधर पहुंच गए हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फिर कल अपनी पार्लियामेंट में उसको फाड़ के फेंक दिया, और कांग्रेस का इसमें जो रोल देखा जा रहा है, या खालिस्तान एलिमेंट आ गए हैं, इन सब चीजों को आप कैसे देखती हैं? इन चीजों को मैं इसी तरीके से देखती हूँ, जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि भारत को एक बहुत सशक्त और सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। विपक्ष का काम मतलब हम लोग एज सिटीजन्स इस बात को समझ रहे हैं कि हमें एक बहुत मजबूत विपक्ष चाहिए जो गार्ड करे गवर्नमेंट को अगर वो कुछ गलत कर रही है। लेकिन वो विपक्ष इस चीज को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है और उनका एक्चुअल में गवर्नमेंट को अपोज करना ही ये बात सही है, गवर्नमेंट गलत काम करे आप अपोज करें, पर हर चीज के लिए आप अपोज करें और उस हद तक अपोज करें कि वो नेशन के अगेंस्ट में चला जाए, तो ये फिर देश के लिए भी घातक है और विपक्ष के लिए भी घातक है। तो ये जो इस प्रकार का एक तरीके से ब्रेन वॉश फार्मर्स को कर दिया जा रहा है, डराया जा रहा है और उनकी मांगे भी शिफ्ट होती जा रही हैं, तो वैसे मुझे लगता है कि अब इसका अंत निकट ही है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर खुद माफ कीजिए, मुझको नहीं मालूम आपका लीनिंग्स कांग्रेस की तरफ है या बीजेपी की तरफ है या कहाँ है, लेकिन आपने कहा कि ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। वो तो किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन आप किसको देखती हैं ऑपोजिशन में? राहुल गांधी का तो कुछ लगता नहीं है कोई फ्यूचर है एज स्ट्रांग ऑपोजिशन लीडर। तो किसी और पार्टी में किसी और लीडर को आप देख सकती हैं जो यूनाइटेड फ्रंट में कहीं आगे आ सकता है, कोई भूमिका निभा सकता है? देखिए, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत पुरानी, और हर पॉलिटिकल पार्टी में जो यंग ब्लड है, किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं करूंगी, हर पॉलिटिकल पार्टी में यंग ब्लड है और बहुत एंथुजियास्टिक है और बहुत प्रतिभावान है। उनको अगर मौका दिया जाए, एक्चुअल में अभी क्या है, अपोजिशन के अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर हम लोग बीजेपी की वर्किंग देखें, जब से वो पावर में आई है, तो हमें उसकी वर्किंग में, अब आप उसकी वर्किंग से, उसकी थिंकिंग से रिलेट करें या ना करें, वो एक अलग बात है। अगर कीपिंग असाइड कि हम उससे रिलेट कर रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं है, उसको हम साइड में रखें, तो हम अगर उनकी वर्किंग को देखें तो उन लोगों का एक विजन है और उस विजन पे वो कंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन इस समय कोई भी है, उसका मुझे कंट्री के प्रति, हम लोग चाहते हैं कि उसका एक कंट्री के प्रति विजन हो, जबकि उनके विजन्स अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की तरफ हैं या फिर अपने पॉलिटिकल जो सुप्रीमेसीज हैं उनकी तरफ हैं। जबकि उस हर पार्टी में ऐसे यूथ भी हैं जो एक नेशनल आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं। तो पार्टी कोई भी हो, जरूरत है कि इस प्रकार के जो यूथ हैं वो आगे आके अपना, जो भी है, अपना विजन रखें और उस विजन को लेकर के चलें। तो ये जो
काम करें जो नेशन के लिए हो, और जो गवर्नमेंट जो रूल कर रही है इस समय मेजोरिटी में, उसको भी लगे कि हाँ भैया एक विपक्ष है जिससे हमें लड़ाई करनी पड़ रही है इस समय। तो उनको मतलब जब चुनाव होते हैं या इस प्रकार के होते हैं तो बिना लड़े ही कई जगहों पे उनको जीत हासिल हो जाती है। जैसे अभी हम लोग ने चुनावों में छोटे छोटे जो बाई इलेक्शंस हुए थे, म्युनिसिपल के चुनाव हुए थे, जिला परिषद के हुए थे काफी जगह। तो एक बहुत जरूरत इन लोगों को खुद को भी समझनी चाहिए कि आवश्यकता ये छोटी छोटी बातों पे लड़ने की नहीं है, एक आइडियोलॉजी के साथ नेशन को आगे बढ़ाने की है। वो आइडियोलॉजी जो बीजेपी के पास है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस का कुछ भी रोल देखती हैं क्या एज एन पॉलिटिकल एनालिस्ट इन द न्यू यूनाइटेड ऑपोजिशन फ्रंट, जो वो अभी 3-4 हफ्ते पहले ही ट्राई कर रहे थे वेरियस रीजनल पार्टीज? उन्होंने उसमें कांग्रेस को इनवाइट नहीं किया था, शायद टीएमसी और साउथ की पार्टियां और सारे लोग इकट्ठा होना चाहते थे। तो आप कांग्रेस का कुछ फ्यूचर देखती हैं ऑपोजिशन में इन द कमिंग ईयर्स? नहीं, फ्यूचर क्यों नहीं है? अगर वो अपने आप में, देखिए कोई भी व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, अगर अपने आप में समय के हिसाब से बदलाव करता है तो फ्यूचर उसका है। और अगर वो बदलाव नहीं करेगा तो उसका फ्यूचर नहीं है। समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। तो उनको कांग्रेस तो इस देश की वो पार्टी रही है जो मतलब सबसे पहली पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी और नेशनल पार्टी रही है वो। बीजेपी तो कई जगहों पे थी नहीं, साउथ की तरफ थी नहीं, वो तो अब आने लगी है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं थी। तो कांग्रेस तो वो पार्टी थी जो देश में, पूरे देश में थी। तो उसका फ्यूचर ऐसे अगर वो अपने अंदर चेंजेस करेंगे और अपने आत्ममंथन एक्चुअली करेंगे और अपने आप को बेड़ियों से आजाद करके आगे जाएंगे तो बिल्कुल फ्यूचर तो है, क्योंकि रूट्स अच्छा उसकी ठीक है, ऑलरेडी हैं। मैं अपने सवाल को फिर दूसरे तरीके से आपसे पूछता हूँ एज पॉलिटिकल एनालिस्ट। अगर आप राहुल गांधी को एडवाइस करती आज, तो आप क्या उसको सलाह देती? मेरे ख्याल से ओबामा जी ने उनके बारे में काफी अच्छा कहा है तो उसके ऊपर ही को चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेरे को ये पूछना है आपसे कि आपकी नजर में इज मोदी ए डिविजिव, डिवाइडिंग पर्सनालिटी फॉर पॉलिटिक्स इन इंडिया? देखिए ये आरोप उन पे लगता है, और पॉलिटिकली अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको हमें बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के उन्होंने जब रिफॉर्म्स करे हैं, और वो उन्होंने उस व्यक्ति से करे हैं जो लाइन में सबसे आखिर में खड़ा होता है। और जब वो वहां से रिफॉर्म करते हैं, चाहे वो बिजली देने की बात हो, चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे घर बनाने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे गैस कनेक्शंस की बात हो, चाहे कोई भी योजना हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस लिस्ट को सामने रख के करते हो कि मुझे इसके साथ करना है और इसके साथ नहीं करना है। तो और उन्होंने कई बार कहा भी है सबका साथ सबका विश्वास, 2014 में कहा था, और 2016 में उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विश्वास और सबका भरोसा भी उनको कमाना है सबके साथ लेकर के। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये आरोप सही है। लेकिन मोदी के साथ काम करने में थोड़ा लोगों को तकलीफ हो रहा है ना, जैसे उनके अपना ही एलाइज जो श्रोमणी अकाली दल थे, वो इस फार्म बिल्स के चक्कर में उनका कोलिशन जो था, अरेंजमेंट, वो टूट गया। हरसिमरत कौर को रिजाइन करना पड़ा। फिर बंगाल में क्या हो रहा है आपके सामने ही है, अभी अमित शाह उधर जाने वाले हैं और ममता बनर्जी ऑलरेडी कंप्लेंट कर रही है। केजरीवाल इल्जाम लगा रहे हैं कि फेडरलिज्म पे अटैक हो रहा है, दे आर प्लेइंग अप विद central cadre of IPS officers and so on. So, is he a difficult person in your view to work with, नरेंद्र मोदी? मोदी, देखिए मोदी जी की जब आप बात कर रहे हैं तो हम लोग अकेले मोदी जी की बात नहीं कर सकते हैं। हम, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं। बाकी के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जिनका आपने नाम लिया, वो भी पॉलिटिकल पार्टी से। तो पॉलिटिकल इन लीडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग पॉलिटिक्स से आगे सोच ही नहीं पाते, और पॉलिटिक्स में इन लोगों को क्या फायदा होगा, तो इनके बयान रोज बदलते रहते हैं।
लेकिन मोदी जी ने अपने खुद के कई इंटरव्यूज में ये बात कही है कि पॉलिटिक्स वो करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में होते हैं और सरकार चलाते हैं तो वो सिर्फ काम करते हैं, और काम करते समय पॉलिटिक्स उनके दिमाग में नहीं होती है। और जब ये चीज बाकी के सारे लीडर्स सीख लेंगे कि पॉलिटिक्स में और देश के लिए काम करने में क्या फर्क है, पॉलिटिक्स में आप आकर के देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको वो बीच की जो लाइन है उसको नहीं वो लोग अलग कर पाते। मोदी जी पॉलिटिक्स करते हैं और खुल के कहते हैं कि पॉलिटिक्स में मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता, लेकिन जब वो काम करते हैं तो वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो ये ठीक है, चीज इन सबको सीखनी पड़ेगी। ठीक है। आखिर में खाली दो सवाल। एक ये कि कुछ लोग एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हैं इसको वेस्टेड इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं टू टेस्ट कि अगर ये टोटल रिपील हो जाता है तीनों फार्म लॉज का, तो जो सीएए के प्रोटेस्ट हो रहे थे या एनआरसी के या अदर जो इश्यूज आएंगे अपोजिशन की नजर में या मुस्लिम माइनॉरिटी की नजर में, तो इसको वो टेस्ट केस ले रहे हैं। अगर सक्सेसफुल होता है तो जैसे शाहीन बाग भी रुका हुआ था, ये अभी दिल्ली बॉर्डर रुका हुआ है, तो फ्यूचर में एक ट्रेंड सेटिंग हो सकता है कि यू डोंट लाइक समथिंग द गवर्नमेंट इज डूइंग, ओके ठीक है, रोड ब्लॉक करो और चक्का जाम करो और हम लोग ये कर सकते हैं। आप भी ऐसे ही देखती हैं क्या इसको? देखिए एक्चुअल में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पॉलिटिक्स है वो बहुत अनसर्टेन होता है। आपको ये नहीं पता कि अभी क्या हो रहा है और अगले पल क्या होगा। और इतने लॉन्ग टर्म का ये लोग जब व्यूज ले रहे हैं और इतने नेगेटिव उससे अगर कोई चलेगा, तो मुझे नहीं लगता अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द नेचर एंड द थ्योरी ऑफ द कर्मा, अगर आप उसे बिलीव करते हैं कि वो लोग सफल होंगे। जब आप एक सोच लेके चल रहे हो, वो अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ जाएगी तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव आइडियोलॉजी के साथ, नेगेटिविटी के संग आगे जाएंगे तो नेचर भी आपका सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये एक्चुअल में जो शुरुआत है, जो बीज है इस सोच का, वो ही गलत है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बीज आगे जाके पेड़ बन पाएगा। ठीक है। आखिर में मेरे सवाल एक ही है लेकिन उसके दो हिस्से। पहला हिस्सा ये है कि आप सोचती हैं मोदी गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है टोटल रिपील करने का? नहीं, उसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली है। उन्होंने कहा कि आप होल्ड पे रख लें इसको, ठीक है, लॉज को। ओके। फाइनली ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, आपके एनालिसिस के हिसाब से कब और कैसे खत्म हो सकता है? कहाँ चलेंगे यहाँ से लोग आगे टू रिजॉल्व द इशू? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अब जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो गई है, और सामाजिक रूप से भी सारा जो गवर्नमेंट के जो हैं हमारे नेता, वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं। और सोशली भी उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक आपने भी देखा होगा कि एक वायरल हुआ था वीडियो, जिसमें एक किसान अपने पूरी फसल पे, गोभी की फसल पे ट्रैक्टर चला रहा था। तो हमारे रवि प्रसाद जी हैं, जो मंत्री हैं कानून के, उन्होंने उस वीडियो को देखा था और उन्होंने खुद से इंटरवीन करके उस किसान की फसल बिकवाई थी और उसके अकाउंट में पैसा चला गया था। तो जब इस प्रकार के छोटे छोटे कदम लोगों तक पहुंचेंगे और इंटेंशंस क्लियर हैं, फार्मर्स के प्रति ऐसा कोई हार्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फार्मर्स चाहते हैं कि कोई सुधार है, तो हर चीज में सुधार की गुंजाइश होती है और सरकार उस सुधार को करने के लिए तैयार भी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा लंबा खींचेगा। और कुछ एक किसान यूनियन आगे आ भी गए हैं इस बिल के समर्थन में, तो बीच का रास्ता ही इसको हल करेगा और बीच का रास्ता निकलेगा और जल्दी ही निकलेगा। क्योंकि इससे पहले भी मोदी गवर्नमेंट अपने आप को कई बार प्रूव कर चुकी है। जैसे राम मंदिर का जब फैसला आया था और जब 370 का उन्होंने स्टेप उठाया था, तो इसको भी ये लोग कर लेंगे। Dr. Neelam Mahindra, thank you very much for talking to Bharat Times. I hope we'll chat again. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू।